Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. In the chapter of financial management हमने ये पढ़ा था that every finance manager has to take three major decisions. You can see over your screen that is every finance manager has to take three major financial decisions, that is investment decision, financing decision and dividend decision. Financing decision means deciding the sources of funds. Investment decision means deciding the usage of funds, and dividend decision means deciding about the disposal of profits. Regarding the investment decision, we had already discussed in the previous video, and in this video we will be discussing about the financing decision as well as dividend decision. Let us start with that. फाइनेंसिंग डिसीजन. देखिए, जब भी हम बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन में, तो इसमें मेजर जो कंसंट्रेशन है, अ फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू डिसाइड अ रेशियो, अ प्रपोर्शन बिटवीन द ओनर्स फंड एंड द बोरोड फंड. हम सब जानते हैं कि फाइनेंस के सोर्सेज में कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो कि शेयर होल्डर्स के होते हैं या फिर ओनर के होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बोरोड फंड में आते हैं. हमने क्लास 11th में सोर्स ऑफ फाइनेंस में पढ़ा था, दैट इज़ सोर्स ऑफ फाइनेंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू on the basis of ownership, on the basis of time period, on the basis of source of generation, internally generated और externally generated. तो यहाँ पे आप क्या सोचते हैं कि अगर हमें फाइनेंस की ज़रूरत है तो हम शेयर्स इशू करके मनी अरेंज करें या फिर बैंक से जाके लोन लें. बात यह है कि एवरी सोर्स, वेदर इट इज़ अ ओनर्स फंड और इट इज़ अ बोरोड फंड, every source has its own merits and demerits. Therefore, a finance manager has to choose a combination between the owner's fund and the borrowed fund. A finance manager has to choose a combination between the owner's fund and the borrowed fund. Shareholders fund represents the owner's fund and borrowed fund, that is external equity. So now the question is whether this proportion or the ratio will be 50:50, or it should be 60:40, or it should be 70:30. It all depends upon various situations. So that we have to study in the financing decision. What a finance manager has to decide under the financing decision, he has to decide the proportion of debt and equity. He has to decide the proportion between the owner's fund and the borrowed fund. Now let us see the topic that is financing decision deals with. Financing decision deals with first of all determination of source of finance. हमें फाइनेंस जो अरेंज करना है, हमें जो फंड्स अरेंज करने हैं, वो कौन से सोर्स से अरेंज करने हैं. सेकेंडली इट डिसाइड और इट डील्स विद द अमाउंट टू बी रेज्ड फ्रॉम ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस. आपने सोर्स डिसाइड कर लिया कि हम थोड़ा अमाउंट इक्विटी से रेज़ करेंगे, थोड़ा अमाउंट डिवेंचर से रेज़ करेंगे, थोड़ा अमाउंट बैंक लोन से रेज़ करेंगे. तो अब कौन से सोर्स से हमें कितना फाइनेंस अरेंज करना है, दैट विल बी द सेकंड डिसीजन. नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस. जब आप डिसाइड करेंगे कौन कौन से सोर्स से कितना कितना अरेंज करना है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू कंसिडर द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस ऑल्सो. कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का मीनिंग मैंने पहले भी समझाया था, मैं दोबारा से बता देता हूँ. कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का मीनिंग होता है, सपोज़ हमने डिवेंचर्स से मनी रेज़ किया तो हमें उस पर कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना है. सपोज़ हमने बैंक लोन से मनी अरेंज किया तो उस पर कितना इंटरेस्ट हमें पे करना है. सपोज़ हमने इक्विटी शेयर से मनी फाइनेंस रेज़ किया है तो हमें उस पर कितना डिविडेंड देना है. सो दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस हैज़ ऑल्सो टू बी considered. 3 points we have discussed under the financing decision. First of all, we have to determine the source of finance. After that, the amount to be raised from each source, and finally the cost that has to be incurred, the cost of each and every source of finance. Now just concentrate here, a topic given that is debt and equity differs significantly इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड रिस्क. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, दैट इज़ कॉस्ट एंड रिस्क. 2 टर्म मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, कॉस्ट एंड रिस्क. इसको आपको देखना है. एक वर्ड है कॉस्ट और दूसरा है रिस्क. डेट का मीनिंग है बोरोड फंड और इक्विटी का मीनिंग है ओनर्स फंड. दोनों में कहीं पे कॉस्ट ज़्यादा है तो कहीं पे रिस्क ज़्यादा है. सो वी हैव टू चूज़ अ कॉम्बिनेशन. देखिए, सबसे पहला पॉइंट कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ डेट is cheaper
देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कैसे? मान लीजिए कि अगर आपको हाई प्रॉफिट्स अर्न करते हैं आप, तो जब आप हाई प्रॉफिट्स अर्न करेंगे, जब आप हाई प्रॉफिट्स अर्न करते हैं और अगर आपने जो फाइनेंस है, जो फंड्स हैं, वो इक्विटी शेयर से अरेंज कर रखा है, तो जितने भी प्रॉफिट्स हैं आपको सारे के सारे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने जो फाइनेंस अरेंज किया है वो डेट फंड से किया है, यानी कि बैंक लोन से किया है, डिबेंचर से किया है, तो आपको उस पर एक फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। तो यहाँ पे बात क्या आती है, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ डेट इज़ चीपर देन द इक्विटी, क्योंकि वहाँ पे एक फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देना है। तो ये क्या होता है, ये इकोनॉमिकल सोर्स होता है। डेट सोर्स इज़ एन इकोनॉमिकल सोर्स, बट ऑन द अदर साइड इट इज़ ऑन द बेस ऑफ रिस्क। अगर हम बात करें, सो डेट इज़ अ रिस्कियर कैपिटल। क्यों रिस्कियर होता है? मान लीजिए आपकी कंपनी में लॉस हो गया, तो लॉस की सिचुएशन में भी आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपकी कंपनी बंद होने जा रही है, तो आपको जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो रीपेमेंट करना भी आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। तो कॉस्ट के कंसर्न में अगर हम बात करें, तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट फंड इज़ अ बेटर वन। लेकिन अगर रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, तो रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इक्विटी है, यानी कि ओनर्स फंड है, दैट इज़ अ बेटर वन। देखिए क्या लिखा है इन द पॉइंट ऑफ रिस्क, डिबेंचर्स आर चीपर देन इक्विटी बट दे आर मोर रिस्कियर because it involves regular timely interest payment irrespective of the business earns profit or incur loss। फिर से एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको जब भी डेट और इक्विटी में कंपैरिजन करना है, जब भी आपको बोरोड फंड और ओनर्स फंड में कंपैरिजन करना है, तो दो मेन पॉइंट आपको ध्यान करने हैं। पहला है कॉस्ट और दूसरा है रिस्क। अगर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, सो डेट इज़ अ चीपर फंड, चीपर सोर्स। बट अगर हम रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो इक्विटी इज़ अ रिस्क फ्री सोर्स। सो हम किसी एक पे तो रिलाई रह ही नहीं सकते। नाइदर वी कैन रिलाई कम्प्लीटली ऑन द ओनर्स फंड, नॉर वी कैन रिलाई कम्प्लीटली ऑन द बोरोड फंड, बट वी हैव टू चूज़ अ कॉम्बिनेशन। और वो कॉम्बिनेशन कितना होगा, क्या होगा, कैसा होगा, इसी का डिसीजन जब लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। लेट अस मूव फर्दर। यूज़ ऑफ बोरोड फंड्स are procure business finance to procure business finance involves repayment of the funds at the time maturity। तो वही बात आ रही है कि प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट करना भी एक कंपलसरी हो जाता है डेट में। तो डेट क्या है, डेट रिस्कियर है, सस्ता तो है लेकिन रिस्क ज़्यादा है। और इक्विटी क्या है, इक्विटी में रिस्क बिल्कुल भी नहीं है लेकिन महंगा पड़ सकता है। प्रॉफिट की सिचुएशन में जितना भी प्रॉफिट्स है डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। Now let us discuss about the financial risk. What does financial risk mean? यहाँ पे एक टर्म दे रखा है आपको, financial risk. What does financial risk mean? It refers to the chance that a company would fail to meet its payment obligations. That is interest and the principal amount. मान लीजिए अगर प्रॉफिट्स नहीं होते हैं तो हम इंटरेस्ट टाइमली पेमेंट नहीं कर पाएंगे, और कंटिन्यूस लॉसेज होते हैं तो वहाँ पे तो सिचुएशन फिर प्रिंसिपल अमाउंट भी पे नहीं कर पाएंगे। सो फाइनेंशियल रिस्क अगर टर्म आता है तो आपको याद होना चाहिए, व्हाट डज फाइनेंशियल रिस्क मीन? फाइनेंशियल रिस्क मीन्स अ चांस दैट अ कंपनी वुड फेल टू मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशंस। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, वाइल इक्विटी इज़ अ लेस रिस्कियर। अभी मैंने इस चीज़ को डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर नोट्स पर्पस। अदरवाइज फाइनल अभी तक हमने क्या समझा है, दैट इज़ अंडर द फाइनेंसिंग डिसीजन फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू चूज़ अ कॉम्बिनेशन बिटवीन द बोरोड फंड एंड द ओनर्स फंड। वाई? बिकॉज बोरोड फंड दैट इज़ डेट इज़ अ चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस, इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फाइनेंस, बट अ रिस्कियर वन, क्योंकि उस पर रीपेमेंट कंपलसरी होता है। ऑन द अदर साइड ओनर्स फंड दैट इज़ इक्विटी इज़ अ रिस्क फ्री कैपिटल, इज़ अ रिस्क फ्री सोर्स, उस पर रीपेमेंट कंपलसरी नहीं है, लॉस की सिचुएशन में डिविडेंड पेमेंट भी कंपलसरी नहीं है, बट इट इज़ अ रिलेटिवली यू कैन से महंगा है। इट इज़ कंपेरेटिवली हैविंग अ हाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। अगर ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं तो आपको वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सो ये एक इनका आपस में रिलेशन है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अ फाइनेंस मैनेजर keeps in his mind while deciding the combination between the debt and equity? What are the factors
that affects the proportion of borrowed fund and the owner's fund. So the first one is the same, that is the cost, कि cost किसकी कम आ रही है. सेकेंड पॉइंट रिस्क, रिस्क किस में कम है. ये दोनों मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो डिटेल वापस नहीं लूँगा. अब आता है थर्ड पॉइंट, दैट इज़ फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट को आप समझें कि फ्लोटेशन कॉस्ट होता क्या है. जब हम फंड अरेंज करने जाते हैं तो जो हमें खर्चा करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट. फॉर एग्जांपल, अगर मैं शेयर्स इशू करता हूँ, अगर मैं फाइनेंस अरेंज करता हूँ शेयर्स इशू करके, तो शेयर्स इशू करने के लिए मुझे प्रोस्पेक्टस इशू करना है, उसके एक्सपेंसेस लगेंगे, शेयर इशू एक्सपेंसेस होंगे, मुझे अंडरराइटर्स कमीशन देना पड़ेगा, ब्रोकरेज देना पड़ेगा, शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाना है, उसके कुछ एक्सपेंसेस आएंगे. तो ये इतने सारे जो सारे खर्चे थे ये लगेंगे अगर मुझे फंड्स अरेंज करने हैं इक्विटी से शेयर्स इशू करके. लेकिन उसी की जगह अगर मैं चूज़ करता हूँ कि मैं जो फंड्स अरेंज कर रहा हूँ वो बैंक लोन से कर लेता हूँ, तो आप बैंक में जाइए, बैंक में जाके एक फॉर्म भरिए, वो फॉर्म भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगा बैंक से, उसके भी आपको कोई पैसे नहीं देने. वो फॉर्म भरिए और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लोन प्रोवाइड हो जाएगा, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आती है. क्या समझ में आया. यानी कि अगर हम बोरोड फंड पे जाते हैं, बैंक लोन पे जाते हैं, तो हमें फ्लोटेशन कॉस्ट नील के बराबर है. बैंक मैनेजर आपको पास में बैठा के चाय भी पिलाएगा क्योंकि आप उससे लोन ले रहे हैं, तो उसमें उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट है. ठीक है. जो फॉर्म है, जिस फॉर्म को आपने फिल किया है लोन लेने के लिए, वो फॉर्म भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है. यानी बैंक से लोन लेते हैं तो फ्लोटेशन कॉस्ट ज़ीरो आ रहा है. लेकिन अगर हम वही फाइनेंस इक्विटी शेयर्स को इशू करके रेज़ करते हैं तो फ्लोटेशन कॉस्ट के नाम पे हमारे पास में शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं, अंडरराइटिंग कमीशन है, ब्रोकरेज ऑफ द ब्रोकर है, लिस्ट एक्सपेंसेस ऑन लिस्टिंग ऑफ शेयर्स टू द स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक्सपेंसेस फॉर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं. तो फ्लोटेशन कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट इनकर्ड टू एक्वायर द फाइनेंस. फंड अरेंज करने के लिए, फंड एक्वायर करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं, उसे भी कंसिडर करना होता है. और फोर्थ पॉइंट आता है इसमें, दैट इज़ कैश फ्लो पोजीशन. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर फर्म का कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो फिर आप डेट फंड पे जा सकते हैं. लेकिन अगर फर्म का कैश फ्लो पोजीशन अच्छा नहीं है तो फिर आपको इक्विटी पे डिपेंडेंट रहना बेटर है. अब बात आती है कैश फ्लो पोजीशन होता क्या है. कैश फ्लो का मीनिंग होता है लिक्विडिटी पोजीशन, कि फ़र्म की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है. इस बात को अच्छी तरह से समझिएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन एंड कैश फ्लो पोजीशन आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट. कई बार कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जिनका नेट प्रॉफिट तो बहुत अच्छा शो हो रहा होता है, लेकिन अगर हम बात करें उनकी कैश पोजीशन की तो उनकी जेब में कैश पोजीशन अच्छी नहीं है, उनकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं होती है. उनका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो नेट प्रॉफिट शो कर देगा 10,000, 20,000, 30,000 का, लेकिन बैलेंस शीट में जब आप कैश इन हैंड और कैश एट बैंक चेक करने जाएंगे तो वो हो सकता है आपको नील मिले. तो बात आती है हमें कंसिडर करना है कैश फ्लो पोजीशन पे भी. अगर आपने जो फंड्स अरेंज किए हैं बैंक लोन से किए हैं, अगर आपने जो फंड्स अरेंज किए हैं वो डेट से किए हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट रीपेमेंट करना है, आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, वो इंटरेस्ट पेमेंट आपको कैश में करना पड़ेगा. आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भली कितनी ही अच्छी हो, लेकिन अगर आपके हाथ में कैश नहीं है रीपेमेंट के लिए, फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपके पास में कैश अवेलेबिलिटी नहीं है, आपकी फर्म की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, तो फिर इट इज़ बेटर टू बी रिलाई ऑन इक्विटी इंस्टेड ऑफ डेट. ऑन द अदर साइड, इफ़ यू आर हैविंग अ बेटर कैश फ्लो पोजीशन, आपके पास में सफिशिएंट कैश इनफ्लोज हो रहे हैं, तो आप डेट पे भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 4 पॉइंट्स हमने कंसिडर किए. फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन हम पढ़ रहे हैं, 4 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं. द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो डिसाइड करेगा कि आप डेट पे जाएंगे या इक्विटी पे, वो है कंट्रोल वेदर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. You all know that is the shareholders are the real owners of the company, whether the existing shareholders are ready to dilute their control over the business. अब ये कंट्रोल डाइल्यूजन का मीनिंग क्या है. मान लीजिए कंपनी के 10 शेयर होल्डर हैं, तो कितने ओनर्स हैं, 10 ओनर हुए. 10 ओनर हैं तो हर ओनर का हर शेयर होल्डर का ओनरशिप राइट कितना होगा, 1/10 ईच. अगर इक्वल शेयर सबके पास हैं तो 1/10. लेकिन अब मान लीजिए आपने और शेयर्स इशू किए. जैसे ही आपने और शेयर्स इशू किए और 10 शेयर होल्डर्स ने शेयर्स परचेज़ कर लिए. पहले 10 ओनर्स थे, अब 20 ओनर्स हैं. अब अगर सभी के पास में इक्वल नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं तो सभी का ओनरशिप राइट कितना हो जाएगा, 1/20. और 10 ओनर्स अगर आ जाते हैं तो सबका ओनरशिप राइट कितना हो जाएगा, 1/30. यानी ओनरशिप राइट क्या हो रहा है, डाइल्यूट होता जा रहा है. सो इफ़ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर रेडी टू डाइल्यूट देयर ओनरशिप राइट्स, इफ़ दे आर रेडी टू लूज़ देयर कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, देन आप इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स
वो नहीं चाहते हैं कि हमारे ओनरशिप राइट्स कम हों, तो फिर इट इज़ बेटर टू बी रिलाई ओवर डेट, दैट इज़ बैंक लोन एंड डिबेंचर्स। क्यों? क्योंकि अगर हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो ओनरशिप राइट नहीं मिलते हैं डिबेंचर होल्डर्स को। अगर हम बैंक लोन से मनी रेज करते हैं तो बैंक को ओनरशिप राइट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने इक्विटी से फाइनेंस रेज किया है तो आपके ओनरशिप राइट्स डाइल्यूट हो जाते हैं। तो ये था टोटल discussion about the financing decision, in which a finance manager has to choose the combination of debt and equity. A finance manager has to choose a proportion between the borrowed fund and the owner's fund, and these are the major 4 plus 1 5 factors which help a finance manager to decide that which source of finance will be a better one and what will be the combination of these sources of finance. Coming to the last one, that is dividend decision. Under the dividend decision फाइनली यही डिसाइड करना है कि जो प्रॉफिट हमने अर्न कर लिया है, सबसे पहले हमने फंड्स अरेंज किए फाइनेंसिंग डिसीजन में, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने उसको इन्वेस्टमेंट किया, कुछ फिक्स्ड एसेट्स में और कुछ करंट वर्किंग कैपिटल में। फाइनली हमें जब प्रॉफिट अर्न हुआ, अब इस प्रॉफिट के दो काम हो सकते हैं। जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है, आप चाहें तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, और या फिर आप चाहें तो उस प्रॉफिट को आप रिटेन करके रख लें इन द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर द री इन्वेस्टमेंट पर्पजेज़। तो ये डिसीजन लेना होता है हमें डिविडेंड डिसीजन में। अ फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू डिसाइड वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और टू रिटेन द अर्निंग्स इन बाय ट्रांसफरिंग दैम टू रिजर्व्स फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट पर्पजेज़। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिविडेंड इज़ द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। ये इसका मीनिंग आ गया डिविडेंड का। Under the dividend decision relates to how much of the company's after tax is to be distributed to the shareholders and how much of it should be retained in the business for meeting the investment requirements. And again, there are certain factors that have to be considered before taking the dividend decision. 2 points have to be considered in the factors affecting dividend decision. First one, कि earnings कितनी है। अगर high earnings हैं तो ठीक है, आप अच्छा सा डिविडेंड भी दे सकते हैं उसका, और कुछ पार्ट आप रिटेन भी कर सकते हैं। और दूसरा एक मेजर पॉइंट जो आपको कंसिडर करना है वो है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। अगर आपकी अर्निंग्स यू आर हैविंग ए स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, तो फिर आप कोई टेंशन नहीं है, आप डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट करें और इन्वेस्टमेंट प्लान्स के लिए नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट होगा तब हम उसको री इन्वेस्ट कर देंगे। बट इफ़ यू आर हैविंग अ अनस्टेबल अर्निंग, आपके फर्स्ट ईयर में तो प्रॉफिट हो गया और सेकेंड ईयर की आपको कोई पता ही नहीं है कितना प्रॉफिट होगा, देन यू हैव टू कीप द प्रॉफिट्स इनटू रिजर्व्स इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग एज डिविडेंड्स। अगर आपको लगता है कि अर्निंग्स जो है वो अनस्टेबल है तो फिर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करें, बल्कि आप क्या करें, उसको रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करके रिजर्व्स में सेव करके रखें अपनी अर्निंग्स को फॉर मीटिंग द फ्यूचर कंटिजेंसीज। तो ये था एक एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन एंड द डिविडेंड डिसीजन। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सभी स्लाइड्स के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए, एग्जामिनेशन में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।